आज हम इस मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों से आग्रह करेंगे कि वो इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव का कवर पेज रिलीज करें। माननीय राज्यपाल महोदय जी। क्लाइमेट कॉन्क्लेव का रिलीज करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नेट जीरो हॉरिजन के चीफ एडिटर राहुल देव जी और एडिटर विवेकानंद शांडिल से कि वो आकर के इसका लोकार्पण करें। और मीडिया पार्टनर अनकलन टीवी न्यूज एजेंसी के चीफ एडिटर वी राय बाबुल जी भी साथ में पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others, as Mahatma Gandhi unquote. Please, may I request with a big round of applause, kindly welcome on the dais माननीय श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। आरोग्य उत्सव एक्सपो डॉक्टर विपिन कुमार जी, देशराज जी प्रेसिडेंट BYS इंटीग्रेटेड वाइस काउंसिल नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती डॉक्टर सृष्टानंदा बासु जी, प्रेसिडेंट गेस्ट ऑफ टुडे वैद्य आचार्य बालकृष्णा जी, another important legendary luminary Dr. HR Nagendra ji, patrons देवी प्रसाद मिश्रा जी, डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी, respected sevaks, esteemed doctors, dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. It is both a privilege and profound honor to be amidst you today at this momentous Ayushman Bharat Utsav. We are gathered here not merely to celebrate a government scheme, but to participate in a festival of India's collective resolve, a testament to our nation's unwavering commitment to building a healthier, stronger India where no citizen is left behind. We are witnessing a historic transformation in our healthcare landscape under the visionary and determined leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has placed health security at the very core of India's development agenda. Our nation is progressing at an unprecedented pace. This Utsav brings alive the Prime Minister powerful vision of a Vikasit Bharat by 2047, a vision where the health of every single citizen is paramount. It is a privilege to be here today to speak on a subject that lies at every heart of our nation's prosperity and well-being, the remarkable transformation of India's healthcare landscape. Not long ago, access to qualified medical care was a distant dream for millions of our citizens. Particularly in our rural heartland, medical expertise was scarce, often relying on local untrained practitioners. Communities were vulnerable, and quality healthcare was a luxury for few people only. Recognizing this critical gap, our system began a foundation journey. We established primary health centers and sub-centers, creating the first pillars of a structured health network. From these centers emerged
our army of hope, the ASHA workers appointed at the village level, becoming the first line of care and a bridge between the community and the health system. अगर 50 साल पहले गए तो एक एक तालुका में एक पीएचसी भी नहीं था। उधर से पहले तालुकाओं में पीएचसी आए, अभी तालुकाओं से फिर नीचे सब सेंटर्स भी आए हैं। अब वो सब सेंटर्स भी एक एक आगे अपन लेके जा रहे हैं। However, infrastructure alone was not enough. For too long, people would travel to PHCs only to find the right medicine were unavailable, or their conditions required specialized care that simply was not there. This gap between access and outcome needed to be closed. This is where the vision of our national leadership under experienced guidance of Prime Minister Narendra Modi ji made a transformative difference. His own ground level experience as a Chief Minister meant he understood these challenges intimately. This foresight led to a multi-pronged revolution in our healthcare approach. First, we strengthened health education at the village level to build a skilled workforce. Then, in an unprecedented move, the central government embarked on a mission to establish a medical college at every district. पहले सब सेंटर में जो आते हैं उसको कभी ना कुछ ना बोलते हैं, मेडिसिन नहीं होता था। उसके बाद में पीएचसी को ले जाते थे और पीएचसी में कुछ आइडेंटिफाई होता था, ठीक से डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी ने रूरल लेवल पे एज ए चीफ मिनिस्टर ही हैज सीन द सिस्टम व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। वो रूरल सब सेंटर जो है वो अभी आयुष आरोग्य मंदिर बनाया है, जैसा चिकित्सालय आलय यानी टेम्पल, तो उसको एक आयुष आरोग्य मंदिर के नाम से सब कुछ उधर हो। जो भी उधर आया है वो आदमी, वो पेशेंट, वो आशा वर्कर, पेट में जब बच्चा है शुरू हुआ है उस टाइम से वो देखते देखते आएगा, और वो पेशेंट जो है डिलीवरी के लिए ठीक से उसका मेडिसिन दे रहा नहीं दे रहा है, और उसको जो फ्रूट देना है, जो फूड देना है ठीक से दे रहा नहीं दे रहा, नहीं तो गवर्नमेंट से दिलाना, और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी कराना है। तो उधर अगर वही करना है तो प्रॉब्लम होता है, तो उधर से बड़े हॉस्पिटल को लेके जाना है। पुराने दिनों में बड़े हॉस्पिटल जाना है तो गाड़ी पे जाना पड़ता था, बैलगाड़ी के जाना पड़ता था। उसके बाद में एम्बुलेंस हो गए, मगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी नहीं आए तो जो जिनका गाड़ी टैक्सी है वो टैक्सी आशा वर्कर एंगेज करो, हॉस्पिटल को लेके जाओ। जो भी कच्चा टैक्सी का है हम गवर्नमेंट भर्ती करते हैं, ये अभी सिस्टम है। उधर ही छोड़ा नहीं, बच्चे आने के बाद वो बच्चा को क्या टीका देना है, कैसे इंप्रूव करना है, इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, और उसको 18 महीने से पहले क्या करना है ये भी देखते हैं। वही छोड़ते नहीं, बच्चे आगे कैसे इंप्रूव हो रहा है, उसका बच्चे कैसे पढ़ रहा है, नीचे आंगनवाड़ी में कैसे करना है। अगर घर में उसको ठीक से उसको फूड नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट में वो आंगनवाड़ी सेंटर में वो उसको अच्छे खिलाते हैं। उसी टाइम पे वो क्या खेलना है, कैसे खिलाना है, ये भी अभी उधर ही करे हैं। तो जैसे बच्चे हैं वो बच्चे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देके ये करें, उसके हिसाब से अभी बहुत से इन्फेंट्री डेथ जो है वो कम हुआ है। वही छोड़े नहीं, उसके बाद से आगे भी और स्टूडेंट चाइल्ड केयर का, एजुकेशन का
और उसी तरफ से काली इधर ही चोड़े ने आगे जाके जो भी डिसीजेस है वो डिजीजेस आइडेंटिफाई करने के लिए अभी 15 टाइप ऑफ किट्स दिए हैं। 15 टाइप ऑफ किट्स में पानी ठीक है नहीं, वही आरोग्य मंदिर में टेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको टीबी है, टीबी का टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं। फूड का प्रॉब्लम है, फूड का टेस्ट कर सकते हैं। कैंसर का प्रॉब्लम है, कैंसर का टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आगे जाने का जरूरी नहीं है। वैसे ही फिर उधर ही छोड़े ने और सुपर स्पेशलिटी होना है तो सुपर स्पेशलिटी के लिए सुपर स्पेशलिटी कब बनता? जहां मेडिकल कॉलेज है वहीं सुपर स्पेशलिटी बनता है। तो उसीलिए सुपर स्पेशलिटी सबके लिए एक्सेस में आने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने के बाद हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना है। इस हिसाब से हर स्टेटों को पूछा है कि आपके जितने जिला है जहां कॉलेज नहीं है हम परमिशन देंगे। ऐसा खाली परमिशन ही नहीं, उसके लिए पैसे भी देंगे। उस सिलसिले में मोदी जी आने के बाद कॉलेजेस डबल हो गया, सीट्स भी डबल हो गया। मैं ये आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। Furthermore, through the Ayushman Bharat scheme, we are implementing the world's largest health insurance program, protecting millions of families from financial ruin due to medical expenses. A feat unparalleled in its scale and ambition. The result of these concerned efforts are already evident. We are seeing a significant decrease in maternal mortality and overall standard of lifespan has risen. The government has also pioneered a proactive approach to preventive care through regular testing, screening and by studying family and village health histories to anticipate and prevalent illness. This historic strategy has not only elevated healthcare within our borders but has also placed India on the global map today. Our doctors are among the best in the world, sought after their skill and dedication. अभी मेरे known people, in 1971 they went to America after studying doctor here. Now recently 2 years back he came. I asked, brother, why you have come? I came for the hospital. You yourself a doctor, you are practicing there. No, उधर बहुत खर्चा होता है, आगे जाने के खर्च भी, फ्लाइट का चार्जेस भी काउंट करें तो इधर सस्ता है, इसलिए इधर आया हूँ. The confidence and approachability. Pharmaceutical and research capabilities are a matter of national pride. We are world leader in vaccine production and distribution. As demonstrated during the COVID-19 pandemic, when India emerged as a Vishwamitra, supplying vaccines to nations across the globe. This journey from humble village healers to a global health leader is a testament to our nation's resilience, innovation and unwavering commitment to its people. It is a story of every ASHA worker dedication, every doctor's compassion and every policy maker's vision. Let us continue to support this mission for a healthy India, for the foundation of prosperous and powerful India. The journey began with the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, the world's largest health assurance scheme that has been a variable lifesaver for millions. But our vision extends far beyond. We are building a comprehensive, holistic healthcare ecosystem that addresses every aspect of wellness. The Ayushman Arogya Mandir initiative is transforming our sub-centers and PSCs into comprehensive well centers, ensuring quality primarily healthcare research
and remotest villages. The Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission is strengthening secondary and tertiary care infrastructure, making our hospitals future ready. The National Digital Health Mission is creating a seamless technology-driven ecosystem, while specialized programs like the PM National Dialysis Program and Telemanas are providing critical care to those in need. स्वामी जी बोल रहे थे मेरे बारे में कि कितना एज है। एज के बारे में नहीं, मैं योगा में विश्वास करने वाला हूं। 35 इयर्स मैं हर दिन 26 सूर्य नमस्कार करता था और दंड बैठक करता था पूरा 22-23 मिनट्स में, और पसीना पसीना होता था। दैट वाज द ओनली थिंग। एंड इवन नाउ आल्सो आई एम हैविंग ए योगा टीचर। एवरी डे आई प्रैक्टिस योगा एंड वॉकिंग। आई एम ए बिलीवर ऑफ नेचर एंड द yoga. Furthermore, we must operationalize the integration of ARM and Prime Minister Joy through seamless digital health platform that enable electronic referrals and patient tracking, ensuring smooth transaction between primary, secondary and tertiary care. But perhaps most importantly, we must build community trust and awareness through aggressive information campaign. As many citizens still pursue these centers as limited to maternity and child care, we must promote their expanded services for not communicable diseases, mental health and emergency care. मैं इधर से जब इनविटेशन आया था तो इनविटेशन देख के आरोग्य मंदिर जब बोले हैं तो बिफोर कमिंग टू हियर आई वांट टू सी फिजिकली व्हाट इज द आरोग्य मंदिर. देन आई विजिटेड इन त्रिपुरा वन आरोग्य मंदिर सरप्राइजिंगली गिविंग half an hour notice. When I went there, they have shown everything. पहला नीट है, उसके बाद में वो बोले हैं जो अभी मैं बोला है, जो वर्कर्स है उन्हों गांव में टीबी पेशेंट है, टीबी पेशेंट के टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसको बुखार है तो 3 दिन में बुखार जाता है, मगर उनका वो पूरा रोग नहीं होता। 6 महीने तक वो दवा खाना ही है तो नहीं खाते हैं। तो 6 महीने दवा खाने के लिए गवर्नमेंट उसको अच्छे खाने के लिए महीने में 1000 रुपया देते हैं और गोलियां देते हैं। तो गोलियां देने के बाद 1000 रुपया देने के बाद भी नहीं खाते हैं तो फिर उसको मॉनिटर करने के लिए उनके घर में बच्चा हो, बीवी हो या आशा वर्कर हो, उसको भी बोलते हैं कि तुम देखो ये घर में ठीक से 6 महीने खा रहा नहीं खा रहा, अगर तुम देख के ये करे तो आपको भी पैसे देंगे। क्यों? अगर टीबी आया घर में किसी को 3 दिन के बाद उन्होंने समझता चले गया बोल के, मगर नहीं जाएगा वो टीबी और घर वालों को आएगा। जब घर वालों को आए तो बाजू वालों को भी आएगा। तो जो गवर्नमेंट ने सोचा है टीबी मुक्त भारत इंप्लीमेंट करना है तो सही तरह से किसी हाल में करने का आदत मोदी जी ने दिया है, उस हिसाब से वही कर रहा है। वो एक ही नहीं, अभी इंटीग्रेटेड बोले हैं, इंटीग्रेटेड धीरे धीरे से वो लेके आ रहे हैं। तो अभी जहां मैं गया था वो आरोग्य मंदिर है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हफ्ते में 2 बार योगा मास्टर आता है। जो गांव वाले हैं वो है उन लोगों को योगा सिखाते हैं। और हमारे पास कुछ
हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल में एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, ताकि पेशेंट जो आते हैं तो जो चाहते हैं उसके पास जाते हैं। मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के जो चीज है उसमें बिलीवर हूं। जब मेरे को जांडिस आया तो आयुर्वेदिक लिया, जब मेरे को दूसरे प्रॉब्लम आया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाता हूं। अगर ऑपरेशन है, ऑपरेशन हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, ईयर प्रॉब्लम आया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, आई प्रॉब्लम आया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। क्यों? मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, उन्हीं के पास जाना, उन्हीं गए तो ये भी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी है उसके ऊपर मेरा विश्वास है। तो ऐसे ही अभी आपको पूछने वाला हूं, अपन आयुर्वेदिक सिद्धा जो भी बोलते हैं, अपन अपने घर में जब कुछ प्रॉब्लम आता है हेल्थ के लिए, अपन भी अपने हॉस्पिटल में देते गया, अपने हॉस्पिटल में लेके जाते क्या? वो अपन अपने बहू को कन्विंस कर सकते क्या? ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे मगर मेरे बच्चे को तो एलोपैथी के हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं? तो कन्विंस करना ये भी अपना जिम्मेदारी है। अपने घर में अपने नॉन पीपल को अगर कन्विंस नहीं कर सके तो ऐसे उपन्यास देने से फायदा नहीं। अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मिंग आर्म रिक्वायर्स शिफ्टिंग फ्रॉम फैसिलिटी सेंटर टू ए पीपल सेंट्रिक अप्रोच, improving local officials to use data for decision making, organizing wellness programs and building strong community feedback mechanism. अभी आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा कुछ भी हो, उसके लिए अपन कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपन यूज कर रहे क्या, इसका जरूरी है। जब 50 साल पहले मैं जब गांव में बच्चा था तो गांव में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था खाली आके हाथ पकड़ते थे, हाथ पकड़ के तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बोल के बोलते थे। अभी अगर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपन स्टेथ यूज कर रहे, तो जब स्टेथ यूज कर रहे तो बाकी के क्यों नहीं यूज करना? तो जो सिस्टम है, जो सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी अपन यूज कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी अपने इसमें भी पूरा यूज करने के लिए तैयार होना है। आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल। मैं अभी गुरुजी बोल रहे थे कि इतना प्लान्स है, इतना इतना ये कर रहे हैं। आई विजिटेड देहरादून। देहरादून में एक ये है म्यूजियम है, पुराने पुराने जाड़ वगैरह उधर रखते हैं। हाँ, फॉरेस्ट इसमें रेफरल, तो उसका निकलना। वैसे ही अभी एग्रीकल्चर में टेलीमेडिसिन नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो एग्रीकल्चर ऑफिसर ने और फार्मर ने बताया है हमारा ये झाड़ का ये कलर आया है, इसके नीचे ये है, तो आप क्या मेडिसिन देना है। तो एग्रीकल्चर ऑफिस से वो टेलीफोन पे बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये मेडिसिन यूज करो, ये मेडिसिन यूज करो। तो एग्रीकल्चर वाले उनके फर्टिलाइजर्स के लिए पत्तों के ऊपर जो प्रॉब्लम आया है, क्रॉप के ऊपर जो प्रॉब्लम आया है, तो आप क्यों यूज नहीं कर सकते? अपन क्यों यूज नहीं कर सकते? अब कुछ पत्ते हैं, वो पत्ते क्या है, झाड़ क्या है, अपने को भी नहीं मालूम। अभी कुछ जगह पत्ते वैसे ही फेंक देते हैं। वैसे पत्ते में त्रिपुरा जाने के बाद जो हमारे गांव में फेंक देते थे, वो गांव वो उधर खाते हैं।
तो पत्ते जो खा सकते हैं, जो क्रॉप से तैयार करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, जो बगैर क्रॉप के भी बाजार में मिलता है, वो अपने को नहीं मालूम। इसलिए इसका पॉपुलराइज करना भी जरूरी है। इसलिए मैं एज ए गवर्नर, जब हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी को एट होम होता है, तो एट होम होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ को नया कुछ इंट्रोड्यूस करो। जो पत्ते इधर खाते हैं वो पत्ते अपना एट होम में रखो। जो पत्ते जो फेंक देते हैं, फेंक देने का काम इधर यूज करके बताओ। तो ऐसे है। तो अभी मास्टर जी ने, योगी जी ने बोल रहा था, हमारे पास इतने वैरायटीज है। एक हमारा पास एक वुड है, वो वुड नहीं है, वुड स्टोन है। कोई देखे तो उसको स्टोन बोलते हैं, मगर जो मालूम है सो आदमी बोलते हैं कि ये स्टोन नहीं है, ये वुड है। और ये वुड है, स्टोन जितना गट से होता है, जितना पत्थर जितना स्ट्रांग होता है, वो वुड भी उतना ही स्ट्रांग है। तो अभी अपने को रिसर्च में नहीं मालूम उसमें क्या वैल्यूज है, क्या रिसर्च उतना तक नहीं गए हैं। तो आयुर्वेदिक से अपन उसको ढूंढना है, उसको आगे लेके जाना है। तो इसीलिए जो भी साइंस बोलते हैं, साइंस कैलकुलेशन से साइंस है अल्टीमेटली। तो कैलकुलेशंस में आप जो जो अपने को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके अपना आयुर्वेदिक भी सिस्टमेटिक्स में लाना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। By investing in these fundamental pillars of workforce, infrastructure, integration and community engagement, we can evolve these centers from basic clinics to vibrant institutions that truly serves as the first point of contact for healthy India. Today I see before me a very architects of this transformation to the respected Karyakartas. I say your lifelong dedication to seva and social harmony is the bedrock upon which these initiatives truly flourish. Your grassroots connects ensure that the benefits of these schemes reach the last mile, leaving no one behind. To our esteemed doctors and medical fraternity, you are the soldiers of the frontliners of this health revolution. Your skill-led compassion turn policy into practice and government documents into genuine healing. The nation salute your dedication. It is therefore most fitting to that today we honor two luminaries of who represent the perfect integration of traditional and modern wellness by conferring Patanjali Yoga Ratna सम्मान upon Yoga Guru Dr. H.R. Nagendra ji and Maharshi Charak Ayurveda Ratna सम्मान upon Vaidya Acharya Balakrishna ji. We celebrate the synergy between our ancient wisdom and contemporary medicine. A core philosophy of our Prime Minister's holistic health vision. The government has also made several in private hospitals accessible to the poor also. To this end, I wish to outline clear vision and a call to action built on several key pillars. In our this thing future कैसे रहना, ये भी बोलने के लिए बोला है। तो मेरे मन में जो है मैं बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट, फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी. I wholeheartedly welcome the proposal to remove GST on health insurance. Healthcare is not recently प्रपोज किया है कि इंश्योरेंस बनना है तो इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी लगता था, वो जीएसटी निकाल देने के लिए तय करा है. हेल्थ केयर इज नॉट ए लग्जरी, इट इज ए नेसेसिटी. रिलीविंग दिस फाइनेंशियल बर्डन will make protective health coverage
a reality for countless middle class families. And also, we can think of tax exemption for the medical bills. अभी कुछ बिजनेस में करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है. हमारा ये हेल्थ बॉडी है, ये हमारा बॉडी को हम एक्सपेंडिचर हेल्थ के इसमें जब खर्च करते हैं उसके लिए भी ये सोच सकते हैं. ये मेरा सुझाव है. Vulnerable populations ensuring that a medical emergency does not become a financial burden. Second, a technological revolution at the grassroots. The cornerstone of this new era will be Ayushman Bharat Health Account, a digital health ID for every citizen. We must launch a massive awareness campaign to ensure every individual in every village and town is enrolled with their ID linked to their mobile number. This is not optional, it is essential for seamless care. अभी हमारे पास त्रिपुरा में जो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है उसको पहली बार गया तो उसको नंबर देते हैं, तो वो दूसरी बार जब आता है ये नंबर बोलता है कि लास्ट टाइम क्या डिसीज था, वो डिसीज के ऊपर क्या क्या मेडिसिन दिए ये इनको मालूम होता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मोस्टली दे नो द फैमिली सिस्टम. एक बार फैमिली में एक बार आए तो उनका हिस्ट्री क्या है वो लिख लेते हैं, रख लेते हैं. तो ऐसे ही अभी पूरा देश में घूमते रहते हैं. तो ये डिजिटल नंबर, डिजिटल आईडी भी फोन लिंक होना है ताकि एक साल पहले क्या मेडिसिन दिया, क्या डिसीज दिया था, ये सब होने के लिए वी हैव टू मेक इट परमानेंट. अभी डॉक्टर्स के पास चेंज होते हैं, चेंज होते समय क्या क्या दिया था, क्या मेडिसिन लिया ये नो बोल नहीं सकता है. मैं बुखार गया वो कुछ मेडिसिन दिया वो खाया बोल के बोलता है. इसीलिए ये डिजिटल आईडी इट शुड बी देयर फॉर एवरीबॉडी. We must upgrade our telemedicine services for simple phone call to secure video consultancy, bringing doctor virtually into the patient's home. Furthermore, we assure to establish telemedicine e-clinic across the state, especially in remote areas, to bridge the urban-rural health divide. ये सबके लिए काम में आता है, खाली एलोपैथी के लिए नहीं, आयुर्वेदिक के भी काम में आता है. Leveraging technology also means the expansion of artificial intelligence powered diagnostics for early and accurate detection, and the development of mobile health apps in our local languages to empower every citizen with knowledge in their mother tongue. Third, a fundamental shift from treatment to prevention. Our focus must decisively towards prevention, wellness and early detection. A healthy society is a productive society. We have to see that to framework for regular health screenings in all schools, colleges and at a national level. अभी बच्चों को हर स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम है रेगुलरली अगर चेकअप करे तो बहुत से प्रॉब्लम टैकल होता है. उसके लिए अपन ये करना है. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स. In this spirit, I strongly advocate for the revival and promotion of the family doctor concept, a trusted medical professional for every household, guiding them on their lifelong healthy journey. फैमिली डॉक्टर जब होता है, पुराने टाइम पे होता था, अभी फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट आने से बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकता है. Fourth, expanding access and ensuring quality. The phenomenal access of the Jana Aushadhi Kendras in providing affordable medicine must be taken to the village level. Jana Aushadhi इधर है
मेन सेंटर्स में नहीं, हर जगह हर गांव को लेके जाने का जरूर है. Simultaneously, we must ensure quality. Every primary health center must strive for and obtain quality assurance certificates. ये अभी परसों मैं जहाँ गया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं तुम्हारा सब स्टैंडर्ड है बोल के, तो गवर्नमेंट तुरंत उनको 1 लाख रुपया देता है. 1 लाख रुपया देने से उसमें से 30% जो है उनको स्टाफ जितने भी है उनके लिए कैश प्राइज में जाता है, और बाकी के 70% जो है बाकी के इम्प्रूवमेंट के लिए जाता है. तो ये एक इंसेंटिव है. फिफ्थ, फोकसिंग ऑन आवर फ्यूचर, आवर यूथ, द हेल्थ ऑफ आवर स्टूडेंट्स is the health of our nation's future. Beyond physical checkup, we must appoint psychology counselors in every college to address the growing challenges of mental health and stress. Furthermore, creating awareness among young girls about hygienic and cleanliness at the school level is an investment in societal health that will yield benefits for our generations to come. मैं जहाँ गया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, उधर खुद कुछ नर्सेस है, उनका काम है कि कॉलेज में जाके बच्चियों को, टीनेज बच्चियों को कैसे कैसे हेल्थ ये करना है, मंथली जो प्रॉब्लम होता है उसके कैसे ये करना है, ये भी सिखाने का उसमें है. दिस इज नॉट मियरली गवर्नमेंट एजेंडा, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. हेल्दी स्टेट is a shared responsibility. I call upon our healthcare workers, our technological innovators, our educational institutions, our local governing bodies, and every citizens to embrace this particular vision. A society's true character is measured by how it treats its most poor people, and that includes its elderly population, senior citizens. Older adults face a variety of unique challenges that require our empathy, our attention, and our decisive actions. A primary concern for many seniors, often overlooked, is not just medical but social. The struggle against isolation and the need to remain engaged and find meaningful way to spend their time. To address this, we must consider establishing robust network of social clubs and daycare centers for seniors also. Drawing inspiration from successful models in advanced countries. मैं जब एमएलए था, कॉलोनीज में एसोसिएशन क्लब बिल्डिंग्स होते थे, वो किराए को देते थे. मैं उनसे लड़ता था, किराए को क्यों देते हैं? नहीं सर, पुअर पीपल को सस्ते में देता है. नहीं नहीं, ये कॉलोनी एसोसिएशन के लिए, तुम ओल्ड पीपल के लिए ये है, तो तुम ये उधर जाना है, इसके लिए ये करना है. जब मैं प्रेसिडेंट था, एमएलए था, उस टाइम पे वाजपेयी जी इधर था, हमारे मैनिफेस्टो में पहली बार रखा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हम देख लेंगे. उसके बाद में ही सीनियर सिटीजन्स के लिए सेपरेट स्कीम्स आए हैं, 30% रिजर्वेशन कंसेशन आए हैं. ये सब उस टाइम से मैं देख रहा हूँ. तो ऐसे ही अभी बूढ़े लोगों को क्या होना है, जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने रिमेनिंग लाइफ कैसे लीड करना उसको मालूम है, पैसे है. जो चपरासी है, प्यून है, 4th क्लास एम्प्लॉय है, उनके रिटायरमेंट कैसे जीना उनको भी मालूम है. मगर प्रॉब्लम यह है, उनको बूढ़े लोगों को बात करने दूसरे बूढ़े होना है, यही इम्पोर्टेंट है. तो अगर ऑफिस में, घर में बैठते हैं तो बहू को देखते हैं, चाय पीने का इनके मन में रहता है, वो बच्चियों को तैयार करके गांव स्कूल को भेजने का चक्कर में रहता है, तो वे फिर ये देखते रहता है. और उसके बाद में 11 बजे 12 बजे उनके दोस्त आते हैं, बहू के दोस्त, उनसे गपचुप मारते हैं. इनको चाय पीने का ये मूड होता है, देने के लिए लड़ाई करना पड़ता है. अगर इनको वो सोसाइटी में क्लब है, वो सोसाइटी का एसोसिएशन है, अगर उधर गए, उधर मिशन के है,
उधर चाय भी लगाते सकते हैं, उधर अगर मैसेज का रूम है, मैसेज का करा सकते हैं। तो ये उनके पास पैसे है, सर्विस करने का होना है, उनके पैसे है, उनको बात करने वाला होना है, वो बात करने वाले एक क्लब में मिलते हैं। मैं एक बार अमेरिका गया था। अमेरिका में अभी मैं देश के डे केयर सेंटर पर सीनियर सिटीजन्स बोला हूँ। अमेरिका में हैं जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को सुबह में जैसे स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं, वो वैन आके बूढ़े लोगों को लेके जाता है 10-11 बजे और 3 बजे तक उधर रहते हैं, भोजन भी देते हैं, उसके बाद में फिर आके छोड़ता है। तो ऐसे अपन उनके बारे में देखना है। This issue is particularly acute in our rural heartland. In our villages, we see a profound shift. The youth are migrating to urban areas in search of opportunity, leaving their elderly parents behind without adequate support. We must urgently address their plight. Our policies must create a safety net that ensures they are not forgotten. A net woven with access to healthcare, community support and dignity. Furthermore, India has emerged as a global hub for medical tourism. This is a proud achievement. To build on this, we must professionally facilitate these services by providing trained translators and certified medical guides, ensuring we offer not just treatment but a holistic and compassionate expertise for our international medical guests. But the responsibility does not lie with the government alone. The ethos of care must be woven into our social fabric. Every citizen should act as a responsible partner in the health ecosystem. It is incumbent upon all of us to look out for and take care of our fellow citizens, especially our elders and neighbors. This is a culture we must foster for the future. Everyone must feel a deep sense of personal responsibility to promote prevention and wellness, to encourage the adoption of digital medical facilities, and to be vigilant advocates ensuring that affordable medicines are accessible to all. Let us conclude today not as an end but as a beginning. Let us move forward with a renewed commitment to build not just a healthier state but a more compassionate and inclusive society, one that honors its elders, protect its BPL population, and where every citizen is a keeper of their brother and sister. Thank you for all dedication to this mobile cause. जय हिंद। मैं लास्ट में टाइम नहीं है, आगे सोचने के लिए 2-3 सब्जेक्ट आपके सामने छोड़ के मैं विराम करता हूँ। अभी प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिजेस एक साइड प्रॉब्लम है, लेट मैरिजेस भी दूसरे साइड प्रॉब्लम है। दोनों को भी सोचना है। सिंगल चाइल्ड प्रॉब्लम है। सिंगल चाइल्ड और 2 से आगे बच्चे जितने हैं उतने में उसमें जितना परफेक्शन ये होता है वो सिंगल चाइल्ड में नहीं है। इसके बारे में सोचना है। और मदर मिल्क देने के पद्धति भी है। ये मेडिकल पढ़े सो डॉक्टरों को भी कैसे मिल्क देना ये भी नहीं मालूम है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दैट देयर विल बी बेबी फीड पैड है बोल के डॉक्टरों को नहीं मालूम है। तो वैसे ही स्टोरेज ऑफ मदर मिल्क है और डोनेशन ऑफ मदर मिल्क भी है। जिनको नहीं है कैसे ये कर सकते हैं, इसके बाद में छोड़ना है। और
दूसरा एक बुरा डिसीज आ रहे हैं, नो मैरिज, नो चिल्ड्रन, also a disease. We have to think, we have to discuss on this also. You are seeing Europe and China, what is the problem? And गाँव में स्कूलों में जैसा 100% अटेंडेंस होता है उनके लिए रिकग्नाइजेशन होता है। अभी मोदी जी आने के बाद ब्लड शुगर के बारे में स्कूल में बोर्ड्स लगाए हैं, कौन से इसमें कितना शुगर है क्या है। वैसे ही क्लीन चाइल्ड कॉम्पिटिशन्स भी रखना है और क्लास में बोलना है कि स्कूल में ये क्लीन गर्ल है और ये क्लास भी क्लीन क्लास है, तो कंपटीशन में वो हो सकता है। और स्कूल्स, कॉलेजेस, अपार्टमेंट्स में बच्चों को प्लेइंग एरिया नहीं है, प्लेइंग एरिया नहीं है तो कहाँ खेलते हैं। जो लॉन्स है, लॉन्स अच्छे दिखाने के लिए, सेल करने के लिए लॉन्स रखते हैं, मगर वो लॉन्स में बूढ़े लोग बैठ के बातें करने के लिए काम में आता, बच्चों को खेलने के लिए गए तो हमारा लॉन खराब होता है, इधर नहीं खेलना बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इट हैज टू थिंक that apartment they should have gym or playground for children, and in the same way in the colleges and schools they must see that grounds are there for school children. This you discuss in the coming conferences and coming years. Thank you.